Hello, hi. I am Bhushan Jalali. You are watching Economy by Bhushan Jalali, a subset of Nancy Foundation. Today we have the topic Indian textile sector. So we will be discussing about Indian traditional textile as well as technical textile. Right. Textile sector contributes around 2% of India's GDP, which is equivalent to about 4% of global exports. Fine. India is the sixth largest textile, textile exporter in the world, and it contributes 13% of Indian industrial production and 12% of Indian exports. So you can imagine how important is the textile sector in the overall economy of India. More so, it is the second largest producer of textile in the world, especially in garments. India is set to achieve the target of 200 billion textile production and 100 billion exports by 2030. And as on date, we have the textile production of around 44 billion dollars. Fine. The sector gives employment to 45 million people in India directly, and indirectly it provides employment to about 100 million people. And this is expected to enhance to 350 billion of output with 3.5 crore new jobs by 2030. The main reason for this important sector in Indian economy is that we have in our country the complete value chain system in our country. What does this value chain system mean? That means for production and exports of textile, garments, apparel, we don't need to import any input with regard to its products. This is the biggest advantage we have. As for example, we grow cotton in India, we do ginning in India, we do spinning in India, we do prepare a yarn out of that, then we prepare a textile, then we prepare cloth, and then apparel. All these processes are done within the India. As I said earlier, that if you export a product which has 100% value added system, value added inputs within the country, a 1 rupee investment gives returns equivalent to 25 rupees. While as if you import certain parts, certain inputs, and then processing after doing value addition, then export it, it gives a return of only against 1 rupee, it gives 2 or 3 or 4 rupees. So there's a big gap between export of products for whose inputs, raw material is 100% available within the country. So luckily for textile sector, we have all the ingredients available in our country. Fine. For example, cotton farming, spinning, weaving, dyeing, printing, garment manufacturing. All said and done, despite all these advantages, for the last about 11 years, maybe from 2013 to 2024, the sector recorded almost stable growth. There is stable in data in with regard to production. In fact, in last year it was a negative growth of 1%. Why so? When we have so much advantage in this textile sector, why we have this stagnation
or we can say for the last 1 or 2 years we have negative growth of 1%. What is the reason? That we'll discussing here, and what are the steps taken by the government to arrest those trends. Fine. The main manufacturing clusters are in Gujarat, Maharashtra, Tamil Nadu, Uttar Pradesh, and West Bengal, plus other areas also. Now let us talk about what are these government initiatives for overall textile sector. When we talk about textile sector, we have to be conscious that mainly there are two types of textiles. Mainly, one is called traditional textile. It may be jute textile, cotton textile, silk textile, handlooms, all these traditional textiles. Second is technical textile. What we have observed here, the traditional textile though constitutes the major portion of our total exports, but still the growth rate in our traditional textiles is not so high as it is in the technical textiles. So overall, what are the steps taken by the government? Number one is launch of PM Mitra Park scheme. MITRA. PM stands for Prime Minister. Mitra, MITRA. Mitra stands for Mega Integrated Textile Region and Apparel Park. When we talk about any park, it may be IT park, it may be any park. It means in park is an area, huge chunk of land where all the necessary facilities required for that particular industrial activity are available within those areas. Say in the case of Mitra Park, they provide 1,000 acres of land. So a manufacturer, if he is involved in a particular activity, say dyeing, he wants to have a dyeing unit. So he will have market also there, and then he can sell also there. Same way from the textile manufacturer. So he can do dyeing there, ginning there, dyeing facilities there, packaging facilities there, processing facility within the closed circuit of say 1,000 acres. These closed circuits are called parks. The government what has provided? PM Mitra. Under the scheme, it provides incentives, it provides support to the state governments for establishment of those parks, whereas specially meant for textiles. Fine. This they have wherein they can have the plug and play facility. Plug and play facility means, suppose there is some investor, he wants to establish one textile industry in India, say foreigner is, or some industrial or domestic industrial. So he doesn't have to move from place to place where he will have the facilities of water, electricity, road, railway station, or approach road to airport, or other necessary facilities required for this activity. These are all provided in that parks. So an investor, he has simply go pay the money and start the venture. All get the machinery installed there. All the other facilities are available. That is called plug and play facility. Fine. So one thing you remember, that one initiative is PM Mitra scheme. Second is PLI scheme for textiles. Up to 2030, government has PLI scheme means Product Linked Incentives Scheme or Performance Linked Incentive Scheme. So if you have a production of say 100 meters or 100 bales, whatever, 100 units,
they say if you produce 10 units more, so you will be provide incentive for 10 units. So it motivates people, manufacturers, it motivates investors to produce as they are getting incentives from the government. This also helps them to compete in the market effectively. And third step is that is called amended technology upgradation fund trust. Originally it was technology upgrading fund scheme. What is problem in textile sector? Mostly this sector is run by unorganized manufacturers, and that too in remote areas, villages. With the result, they don't have sufficient resources as well as availability of modern technology so that their product could have better productivity, and at the same time its cost will come down. So government has given them a facility. You can upgrade your technology, you can upgrade your machinery, you can upgrade your instruments. For that, if you invest some money in purchasing new machinery, we will provide you the loan through bank, and bank you will have interest subvention, interest subsidy. So in a plain language, government provides these textile manufacturers, especially small ones, for improving, that is called upskilling, for improving their technology and to purchase new machineries. They have created one fund out of which they provide subsidy for such units. Right? Second step, what is that? That is scheme for capacity building in textile sector. This is called Samarth scheme. What is it? India has a problem of very less skilled laborers. When we go to say South Korea, Japan, USA, the workers there are about more than, in South Korea there are 96% of the youths who are skilled, while in India we have only 6% people skilled. So what is the problem? We need to upskill the already existing workers. So government has launched a scheme that is called Scheme for Capacity Building in Textile Sector. How? It aims to provide demand-driven, placement-oriented national skill qualification framework, compliant skill programs. Who is a skilled worker? Who will define what skills are required for a person activity? For that, a framework has been defined. That framework has been defined in National Skill Qualification Framework. जो उस फ्रेमवर्क में बताया गया कि विच वर्कर वी कैन डिक्लेयर दैट ही इज़ अ स्किल्ड वर्कर, जो उनके रूल्स एंड रेगुलेशन हिसाब से हैं, उसके हिसाब से गवर्नमेंट प्रोवाइड्स इंसेंटिव्स for training those people, those students, those people, so that to make them job oriented. हमारे टेक्सटाइल सेक्टर में या बाकी एरिया में क्या है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो कहते हैं कि यहाँ पर स्किल लेबर है ही नहीं, अवेलेबल ही नहीं है, हम कहाँ काम बढ़ाएंगे. सपोज यू गेट सम मशीनरी, इट नीड समवन एक्सपर्ट टू ऑपरेट दैट मशीनरी. तो इन्होंने एक कोर्स बनाया, कैलकुलेट कर दिया, उसके हिसाब से क्या है वो they provide subsidies for training those people. उसमें याद रखना चाहिए अंडर दिस सामर्थ स्कीम, एक्सेप्ट स्पिनिंग एंड वीविंग के लिए. स्पिनिंग एंड वीविंग के लिए इस स्कीम के अंदर उनको स्किल को होन करने के लिए ट्रेनिंग नहीं जाते हैं. वाई? बिकॉज फॉर स्पिनिंग एंड वीविंग दे आर ऑलरेडी कवर्ड अंडर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना.
सो ये पॉइंट आपने याद रखना है, क्योंकि MCQ में किस टाइम पूछते हैं. सो यू शुड नॉट गेट कन्फ्यूज. सो दीज आर स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू डेवलप आवर टेक्सटाइल सेक्टर. प्लस वन मोर स्कीम, दैट इज कॉल्ड स्कीम फॉर इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क. जैसे मैंने अभी बताया मित्रा में भी वो टेक्सटाइल पार्क बनाते हैं, इसमें भी वो ये स्कीम भी है, स्कीम फॉर इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क. जैसे है एक टेक्सटाइल पार्क में एक होना चाहिए, एक डाइंग यूनिट होना चाहिए, एक होना पैकेजिंग यूनिट होना चाहिए, एक होना जो उसको डिज़ाइन बनाएगा, ऐसा यूनिट होना चाहिए. तो टोटल मिला के अलग अलग जाने की, बिजनेसमैन को अलग अलग जाने की ज़रूरत नहीं है. सो इफ़ ही हैज़ एस्टेब्लिश वन यूनिट, अदर इनपुट्स ही विल गेट लोकली वहाँ पर विद इन दैट 1000 एकड़ में उसको मिल जाएगा. अब ये सवाल आता है कि जो PM मित्रा है एंड दिस स्कीम फॉर इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क, इन दोनों में क्या अंतर है. जो स्कीम फॉर इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क है, इसमें यह है कि जो मेन आइटम चाहिए टेक्सटाइल यूनिट में वो वहाँ आपको फैसिलिटी अवेलेबल है, फाइन. लेकिन जो मित्रा है, PM मित्रा, ये है अल्टीमेट मॉडर्न ग्लोबल फ्यूचरिस्टिक रिक्वायरमेंट फॉर अ टेक्सटाइल इंडस्ट्री. वहाँ उस लेवल के, उस स्टैंडर्ड के फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, सो दैट कंट्रीब्यूट्स टू मेक टेक्सटाइल सेक्टर सस्टेनेबल एंड एज अ ग्लोबल हब फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टेक्सटाइल, नॉट फॉर इंडिया ओनली, फॉर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. आगे आने वाले क्या टेक्नोलॉजी लगेगी, आगे आने वाला क्या स्टैंडर्ड होगा, उसी के हिसाब से डिज़ाइनिंग, उसी के हिसाब से इट शुड बी ग्रीन टेक्नोलॉजी, उसी के हिसाब से स्टैंडर्ड शुड बी वेरी हाई. वो फैसिलिटी उन पार्कों में होगा विच विल बी अंडर द PM मित्रा. जो नॉर्मल आज एज ऑन डेट चलता है वो दोज पार्क्स विच आर अंडर स्कीम फॉर इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क्स. इसमें क्या है, अभी एज ऑन जुलाई 25 50 टेक्सटाइल पार्क्स वायर सैंक्शन अंडर द स्कीम फॉर इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क विथ 30 पार्क्स कंप्लीटेड एंड ऑपरेशनल वाइल 20 आर अंडर इम्प्लीमेंटेशन. आजकल गवर्नमेंट का जोर इस पर बहुत ज़्यादा है. जैसे अभी 7 PM मित्रा पार्क सैंक्शन हो चुके हैं. नॉर्मल जो है 50 सैंक्शन हो चुके हैं, उसमें 30 तो लगभग तैयार हो गई. ये हुआ गवर्नमेंट स्टेप इसके लिए. दूसरा क्या है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, FDI, to lure the foreign investors in this sector. Government has approved FDI, 100% FDI in textile sector, that too in automatic route. इसमें दो होता है, एक होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में, एक होता है एक ऑटोमेटिक रूट होता है, दूसरा होता है विद गवर्नमेंट परमिशन. यानी कि जो भी बंदा फॉरेनर इन्वेस्टर कोई होगा, इफ़ यू वांट टू एस्टैब्लिश वन, यहाँ पर इंडिया में कहीं टेक्सटाइल यूनिट एस्टैब्लिश करना चाहता है, ही डजंट हैव टू वेट फॉर गवर्नमेंट परमिशन. ही कैन कम टू इंडिया, देयर आर प्लग एंड प्ले फैसिलिटीज़, देयर आर पार्क्स, हाँ, ही कैन स्टार्ट द वेंचर एक्सपेडिशियसली, फाइन. वन मोर स्टेप है, दैट इज कॉल्ड साथी, SAATHI, sustainable and accelerated adoption of efficient textile technologies to help small industries. जैसे अभी हमने कहा आपको वो टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड स्कीम, वो ओवरऑल टेक्सटाइल सेक्टर के लिए है. दूसरा है दिस स्कीम साथी. ये किन के लिए है, हमारे पास कुछ हैंडलूम सेक्टर में दे हैव पावर लूम्स, हाँ, और वो पुराने हैं, ऑब्सलीट टेक्नोलॉजी है. उनको वो मॉडर्नाइज करने के लिए एंड टू मेक देयर एक्टिविटी, टू मेक देयर प्रोफेशन, टू मेक देयर प्रोडक्ट सस्टेनेबल एंड कॉम्पिटिटिव इन द ग्लोबल मार्केट, गवर्नमेंट ने एक स्कीम बनाई है, क्या उसको कहते हैं, पावर लूम सेक्टर के लिए, दैट इज कॉल्ड टू सस्टेन एक्सलेंस. उसमें उनको लोन देते हैं, सब्सिडी देते हैं, दैट इज कॉल्ड साथी. ये हुआ हमारे जो रूटीन हमारे टेक्सटाइल सेक्टर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या क्या स्टेप्स लिए. अब रिसेंट कुछ डेवलपमेंट हुई ऑफ लेट, एज यू नो,
यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने क्या है, दे हैव इम्पोज्ड टैरिफ ऑन इंडियन एक्सपोर्ट्स। तो हमारा टेक्सटाइल सेक्टर तो एक, जैसे मैं स्टार्ट में डाटा दिया है, 2% ऑफ द GDP, 4% ऑफ द ग्लोबल एक्सपोर्ट्स, 6 लार्जर एक्सपोर्टर ऑफ टेक्सटाइल इन द वर्ल्ड। तो उससे हमारा इम्पैक्ट काफ़ी बढ़ गया है। टू काउंटर दैट, जो ट्रंप ने जो स्टेप कर दिया अगेंस्ट इंडिया, उसको काउंटर करने के लिए क्या किया इंडिया ने, टू मेक आवर एक्सपोर्ट्स कॉम्पिटिटिव। वहाँ पर क्या किया इसने, सबसे पहले इसने कह दिया सिग्निफिकेंट रीसेंट रिलैक्सेशन इन क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स। क्वालिटी कंट्रोल क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फ्रॉम टाइम टू टाइम दे हैड इम्पोज सर्टन क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स कि हम ये आपको तभी एक्सपोर्ट करने देंगे जब आपको यहाँ से सर्टिफिकेट लाएंगे, ये तभी हमको एक्सपोर्ट करने देंगे जब आपका ऐसा ऐसा होना चाहिए। सो जो हमारे 14 क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स थे वो उन्हें रिसाइंड कर दिए, कैंसिल कर दिए। इंडिया ने अपनी एक्सपोर्टर को कह दिया कि ये चीज़ों के लिए आपको वहाँ फीस भरना पड़ता था, यहाँ आपको टाइम लगता था, टू सेव योर टाइम एंड कॉस्ट, हम वो 14 ख़त्म ही कर दें। इसमें 7 इसमें वो थे जो विच आर एप्लीकेबल टू मैन मेड फैब्रिक्स। ये नवंबर 2025 में हुआ है। दूसरा से क्या स्टेप ले लिया रिसेंटली, इंडिया ने यूनाइटेड किंगडम के साथ, इंग्लैंड के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर दिया। दिस इज टॉक ऑफ जुलाई 2025। जो क्या होता थे, अब यूनाइटेड किंगडम में, इंग्लैंड में इंडिया भी एक्सपोर्ट करता था टेक्सटाइल्स, वेस्ट बंगाल भी बांग्लादेश भी करता था, चाइना भी करता था, मलेशिया भी करता था, क्योंकि उनके साथ उनका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था इन कंट्री के साथ, इंग्लैंड को, हमारे साथ नहीं था। विद द रिजल्ट जो बाकी कंट्री वहाँ उनको बेचते थे, उनके दाम में और हमारे प्राइसेस में अराउंड 10 to 12% ऑफ डिफरेंस था, यानी कि हमारी चीज़ें वहाँ कॉस्टली थी अबाउट 10%। अब चूँकि अब इंडिया ने क्या फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर दिया उनके साथ, यूके के साथ, सो आवर गुड्स विल बी नाउ 10 to 12% एट चीपर एज कम्पेयर टू आवर प्रीवियस टेरिफ्स, प्रीवियस रेट्स। इससे क्या होगा, करंटली हमारा जो ट्रेड है विद यूनाइटेड किंगडम, इट इज़ वर्थ रुपीज़ $1.79 बिलियन। अभी ये माना जाता है बाय एंटरिंग इनटू दिस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जो हमारा टेक्सटाइल ट्रेड है विद यूनाइटेड किंगडम, इट विल जंप टू $5 बिलियन। सो अगर हमको USA मार्केट में वहाँ कोई मार खा गया, हम वहाँ हमारा एक्सपोर्ट कम हो सकता है, तो उसके बदले में हमारे एक्सपोर्टर्स दे कैन डाइवर्सिफाई, दे कैन सेल इन यूनाइटेड किंगडम मार्केट। सो ये हमारा क्या है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टेप है। दिस डील सपोर्ट्स ग्रोथ इन हब्स लाइक तिरुपुर, ट्रेडिशनल क्लस्टर्स। तिरुपुर में क्या हमारे क्या बनते हैं, जो टेक्सटाइल के जो है पर्टिकुलर क्लास के वहाँ हब है, उसको माना जाता है उसको काफ़ी बूम मिलेगा वहाँ। ये हुआ एक। दूसरा क्या किया हमने, टू हेल्प आवर टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्कीम है दैट इज़ कॉल्ड रेमिशन ऑफ ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स। जब कोई प्रोडक्ट कोई एक्सपोर्ट करता है तो नॉर्मल स्टीन है, उसमें कोई टैक्सेस कहीं लगता है, कहीं ड्यूटी लगता है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि जो भी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करेगा, जो भी उस पर टैक्सेस और ड्यूटीज़ इंडिया इम्पोज करता है, हम उसको रेमिट को माफ़ करते हैं, उनको वापस रिफ़ंड करते हैं एक्सपोर्टर्स को। सो ये इन्होंने अभी स्कीम निकाली और दिस इज़ वैलिड अप टू 31 मार्च 2026। पर्पज़ यही है टू मेक आवर प्रोडक्ट कम्पिटिटिव इन ग्लोबल मार्केट, इन पर्टिकुलर USA में, क्योंकि उन्होंने हम पे काफ़ी टैक्स, उस पर टैरिफ लगा दिया। फाइन। दूसरा क्या है, GST में काफ़ी कम किया हमारे जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। फॉर एग्ज़ाम्पल
रेडीमेड गारमेंट्स, उसमें पहले था 1000 रुपये तक चीज़ पे जीएसटी था 5%। अगर उस वैल्यू का, अगर उस प्रोडक्ट का वैल्यू मोर देन 1000 था तो उस पर लगता था 18% या 12% जीएसटी। अब उन्होंने क्या कहा कि नहीं, अगर आपका प्रोडक्ट का वैल्यू है 2500, दैट मीन दे एनहांस्ड द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट फ्रॉम 1000 टू 2500 तक आपको 5% जीएसटी लगेगा। ऐसे ही मैन मेड यार्न पे, फाइबर एंड यार्न पे, उस पर आपको दे रिड्यूस जीएसटी फ्रॉम 18% टू 5%। सेम वे ऑन हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम में भी दे रिड्यूस्ड जीएसटी फ्रॉम 18%, 12% टू 5%। ये हुआ, इस पे क्या इंसेंटिव दे दिया टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। सेकंड इज रेगुलेटरी एंड लीगल रिफॉर्म्स। कुछ हमारे पास क्या था, लीगल रिफॉर्म ऐसे था, अगर कोई एक्सपोर्टर या मैन्युफैक्चरर कोई गलत काम करता था अंडर सेंट्रल सिल्क बोर्ड एक्ट, उसको पनिशमेंट मिलती थी जेल की। तो इंडिया ने अब क्या, गवर्नमेंट ने क्या किया, नहीं उसको जेल नहीं हो जाएगा, सिविल पनिशमेंट माना जाएगा। इट इज़ कॉल्ड डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ टेक्सटाइल सेक्टर। डीक्रिमिनलाइजेशन, गलत काम किया, राइट का अगर कुछ कानून का उल्लंघन किया, जेल नहीं मिलेगा उसको, ही विल बी पेनलाइज्ड। नॉर्मल पेनल्टी दो 5%, 6-20%, बट नॉट इम्प्रिजनमेंट। ऐसे ही है टेक्सटाइल कमेटी, ये है एक सेंट्रल सिल्क बोर्ड एक्ट, दूसरा है टेक्सटाइल कमेटी एक्ट। इन जनरल वी कैन से डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ सर्टन रूल्स। ये था गवर्नमेंट के स्टेप क्या है। अब इसमें चैलेंजेस क्या है, इसमें टेक्सटाइल सेक्टर में क्या चैलेंज? सबसे हमारा चैलेंज ये है कि हमारा जो ग्लोबल वैल्यू चेन में है, वहाँ हमारा जो प्रोडक्ट है इट इज़ अनकम्पिटिटिव। अब उसके लिए हमको समझना पड़ेगा कि कहाँ है अनकम्पिटिटिव। उसके लिए हमको समझना पड़ेगा व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ इट्स मैन्युफैक्चरिंग। प्रोसेस क्या है, जब खेत में कॉटन का प्लांट तैयार होता है, फर्स्ट प्रोसेस उसमें क्या होता है, दैट इज़ कॉल्ड गिनिंग, GINNING। गिनिंग क्या होता है, जहाँ वो कॉटन का फूल निकलता है उसको वो अलग निकालना होता है। उसके बाद है स्पिनिंग। स्पिनिंग के बाद क्या होता है, वीविंग एंड निटिंग, देन प्रोसेसिंग। स्पिनिंग तक हमारा ठीक है, लेकिन जब हम वीविंग एंड निटिंग स्टेज में जाते हैं, वहाँ हमारा क्या है, इट इज़ एक्सपेंसिव, वहाँ से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट बढ़ जाता है। किस में? बिकॉज 95% ऑफ फैब्रिक प्रोड्यूस इज़ इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़। बड़े इंडस्ट्रीज उसमें नहीं है, ताकि वो बड़े बड़ी मशीनरी लाते हैं, बड़े स्केल पे काम करते हैं, छोटे से स्केल पे काम करते हैं, विद रिजल्ट उनका जो प्रोडक्टिविटी कम होती है और इट ओवरऑल यूनिट पर यूनिट कॉस्ट बढ़ जाता है। यहाँ इस कारण हमारा जो है फाइनल प्रोडक्ट का कॉस्टली बनता है, दैट इज़ अनकम्पिटिटिव। ठीक है। दूसरा क्या है, हमारे लूम्स क्या है, मोर शटल लूम्स होते हैं देन शटल लेस लूम्स। जब कॉटन यार्न बनता है ना, वो आपने देखा, वो एक तो वो ऐसे घूमते हैं उस पर, हाँ, दैट इज कॉल्ड शटल्स। वह जो मॉडर्न टेक्सटाइल फैक्ट्रीज हैं, वहाँ वो शटल ऐसे नहीं करते हैं, या पाँव से वो नहीं करते हैं, वो लकड़ी वाले वो नहीं दबाते हैं। वहाँ मशीन्स होती हैं, मशीन को स्विच ऑन करके वो तो लाखों का वो यार्न टेक्सटाइल बनाते हैं। तो हमारे क्या है, विद शटल लूम्स हैं। इट्स बट व्हाट इज़ रिक्वायर्ड, देयर शुड बी शटल लेस होना चाहिए, इसमें लूम्स होने चाहिए। कहते हैं जो शटल लेस लूम्स हैं, देयर प्रोडक्ट इज 6 टाइम्स मोर देन विद शटल लूम्स। ये हमारा, दैट मीन्स वी नीड टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। सो मेन चैलेंज फॉर टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज टू हैव मोर एंड मोर मॉडर्न न्यू टेक्नोलॉजीज। फाइन। और सेकेंडली क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल। हमारा जो कॉटन जो है ना, रॉ मटेरियल, इसमें फंगस चढ़ता है, तभी इसमें जो गिनिंग मशीन्स होते हैं ना, वो एकदम काटते हैं, मॉइस्चर निकालते हैं, प्रेसिंग करते हैं, उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है। एक तो ये है इसमें। सेकेंडली क्या है, हमारा जो कॉटन है वो इनिशियल स्टेज पे वो लंबा नहीं है, जितना लंबा होता है ना उसका वैल्यू ज़्यादा अच्छा मिलता है। दैट इज़ कॉल्ड हाई वैल्यू कॉटन, हाई वैल्यू टेक्सटाइल्स उसमें बनता है। हमारी इंडिया में हाई वैल्यू प्रोडक्ट
कम बनते हैं। सेकेंडली, हमारा जो MSME है इसमें हाईली फ्रेगमेंटेड है, सो इट इज़ रिकमेंडेड दैट वी शुड हैव मोर एंड मोर दिस टेक्नोलॉजी पार्क्स, एंड वहाँ ही ऑपरेट करना चाहिए टेक्नोलॉजी पार्क्स में। जब आप फ्रेगमेंटेड रहते हैं ना, देन एक एक्टिविटी को पूरा करने के लिए ही हैज़ टू ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस, उसमें कैरेज देनी पड़ती हैं, इट बिकम्स कॉस्टली। सेकंड, दूसरा क्या है, हमारा जो कॉटन है इट इज़ मेड अप ऑफ BT कॉटन, हाँ, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड BT कॉटन है। इसमें क्या होता है, प्रोडक्टिविटी इसमें ज़्यादा है, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट, बट क्या प्रॉब्लम है इसमें, इसमें जो सीड लगता है, ये सीड लगाया आपने, इस सीड को जब तैयार होता है, बाद में इसमें जो दोबारा सीड निकलता है, दैट यू कैन नॉट रीसीड नेक्स्ट ईयर, वो दोबारा नेक्स्ट ईयर नहीं लगा सकते हो। आपको फार्मर को क्या है, वो अगले साल नए सीड परचेज करने पड़ते हैं, सो उस कारण थोड़ा सा ये एक्सपेंसिव बन जाता है। वीविंग हमारा सेक्टर जो है द वीकेस्ट पॉइंट इन टेक्सटाइल सेक्टर, जैसे अभी हमने ऊपर बताया, एज 95% ऑफ द वीविंग सेक्टर इन इंडिया इज़ अनऑर्गेनाइज्ड, यानी कि छोटे छोटे जो घरों में है, गाँव में है, तो वहाँ टेक्नोलॉजी यूज़ करते नहीं है, वो पुरानी ऑब्सोल्यूट लूम्स, हैंड लूम्स यूज़ करते हैं। वो तो हमेशा एक तो उसका प्रोडक्टिविटी कम होती है, और सेकेंडली एफिशिएंसी नहीं होती है। फाइन, अब है व्हाट कैन बी डन, जैसे अभी हमने बताया R&D पे हमको इंडिया में जोर करना चाहिए। R&D पे इंडिया का टोटल जो बजट है वो है, इट इज़ लेस देन 1% ऑफ द GDP, वो तो कुछ नहीं है, दैट इज़ वेरी लेस। तो उस पर हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ध्यान देना चाहिए कि इसके जो टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी पे है उस पर रिसर्च पे करें, ताकि नई नई मशीनें वो ईजाद करें विच आर इकोनॉमिकल एज वेल एज मोर एफिशिएंट एंड बेटर प्राइस्ड है। अडॉप्ट कम्पिटिटिव प्राइस दिस प्रैक्टिसेस। कम्पिटिटिव प्रैक्टिस वो होता है जिसमें खर्चा कम लगता है और प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छे बनते हैं, ज़्यादा निकलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड। उसके लिए क्या है, वी सेंटर्स ऑफ एक्सलेंस, वहाँ से उनको, यानी कि सेंटर एक्सलेंस मीन वहाँ जहाँ रिसर्च डेवलपमेंट करके वो नए मशीनें ईजाद करेंगे। सस्टेनेबिलिटी, PM मोदी का 5F विजन। 5F विजन मतलब क्या होता है, फार्म टू फाइबर, फाइबर टू फैब्रिक, फैब्रिक टू फैशन, एंड फाइनली फैशन टू फॉरेन। ये प्रिंसिपल पे काम होना चाहिए। हाई एंड ग्लोबल चेन वैल्यू, जैसे मैंने कहा ना अभी, हमारा या जो कॉटन है उसका वो लंबा नहीं मिलता है, लंबा वो फूल जो होता है प्रोडक्ट है वो नहीं, कॉटन नहीं निकलता, छोटा साइज़ का होता है, उससे हाई एंड कॉटन नहीं बनता है। सो वी हैव टू डू समथिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हमको ऐसे सीड क्रिएट बनाने हैं जिसका आउटपुट क्वालिटेटिवली बेटर निकलेगा, सो दैट वी आर एबल टू प्रोड्यूस हाई क्वालिटी फाइबर। हाई क्वालिटी फाइबर मीन वो अच्छा है और पैसा भी अच्छा आएगा। लिवरेजिंग अपॉर्चुनिटीज इन टेक्सटाइल, टेक्निकल टेक्सटाइल। अब है टेक्निकल टेक्सटाइल क्या होता है। टेक्निकल टेक्सटाइल में क्या लगता है, एक है जो नेचुरल टेक्सटाइल, नेचुरल कॉटन या नेचुरल कोई जूट हो, वो प्रेफरेबली कॉटन, प्लस सम टेक्निकल जो आर्टिफिशियल होते हैं, वो दोनों मिक्स करके वो बनते हैं। आजकल उस पर क्या है, टेक्निकल टेक्सटाइल पे काफ़ी ज़ोर चल रहा है, तो उस पर हमको लिवरेज करना चाहिए। वो अभी पढ़ेंगे हम, टेक्निकल टेक्सटाइल कितने किस्म के हैं। अब है हाउ आर टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन हेल्पिंग द टेक्सटाइल सेक्टर। देखो कितना हेल्प करता है। इसमें क्या है, अंडर इंडस्ट्री रेवोल्यूशन 4 3D प्रिंटिंग यूज़ होती है। उसमें 3D प्रिंटिंग से क्या होता है, दैट इज़ कॉल्ड सेलुलर टेक्सटाइल। सेलुलर टेक्सटाइल में क्या है, वो टेक्सटाइल पैदा बन जाता है जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी काफ़ी होती है। ए यूनिक न्यू मटेरियल टर्म्ड एज, जिसमें जैसे हम इन लेमैन लैंग्वेज इलास्टिक नहीं होता है। इलास्टिक अगर आपका इतना है, इफ़ इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर स्ट्रेचिंग, स्ट्रेच होता है।
ऐसे ही उसको मल्टीपर्पज़ यूजेस में काम लाया जाता है। Its uniqueness lies in the fact that even a small modification in the textile structure gives the fabric a completely new set of properties. थोड़ा सा फैब्रिक में आप कोई चेंज करोगे, फैब्रिक जो नया बनेगा उसमें टोटली डिफरेंट क्वालिटीज़ निकलेंगी इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेच एंड फ्लेक्सिबिलिटी। ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स यूज़ होता है इसमें। सीबोर्ड टेक्नोलॉजी, मशीन जो काम करती हैं टेक्सटाइल बनाने में, उसमें कैमरा फिट होते हैं। मैनुअल इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई कपड़ा थोड़ा आगे पीछे टेढ़ा हुआ या कुछ डिफेक्ट हो गया, जो उस पर कैमरा फिट किया होता है मशीन पे, वो खुद डिटेक्ट करके खुद करेक्ट करता है। दैट इज़ कॉल्ड सीबोर्ड टेक्नोलॉजी। हाई कैलिबर मशीन विजन एंड रियल टाइम एनालिसिस टू एडजस्ट द फैब्रिक बीइंग स्टिचड, ऑटोमेटिंग द टास्क। यानी कि बंदे को वहाँ लगाने की ज़रूरत नहीं है, मशीन खुद चेक करेगी कपड़ा ठीक चल रहा है कि स्टिचिंग ठीक हो रही है कि गलत हो रही है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इसमें होती है। जब बेल आप जो प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट करते हो या यू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस, विद द हेल्प ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एंड QR कोड्स यू गेट ऑन योर मोबाइल कि आपका आइटम कहाँ पहुँच गया है, क्या पहुँच गया है। सो दिस इज़ हाउ यू कैन यूज़ वाटरलेस डाइंग। वाटरलेस डाइंग मीन्स डाइंग में लिक्विड लगता है ना, पानी लगता है। एक नई तरीका है जिसमें ड्राई डाइंग करनी होते हैं, नैनो टेक्नोलॉजी होते हैं। दिस आर ऑल रिक्वायर्ड इन द विच आर रिक्वायर्ड इन द टेक्सटाइल सेक्टर। अब जिसमें जैसे मैंने कहा कि कॉटन टेक्सटाइल होता है, जूट टेक्सटाइल होता है, और वहाँ साथ टेक्निकल टेक्सटाइल्स क्या होते हैं। जो वाई दिस टेक्निकल टेक्सटाइल्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन टेक्सटाइल सेक्टर, क्योंकि पिछले 5-10 साल से ये देखा गया कि इसके जो क्यूमुलेटिव एग्रीगेट ग्रोथ रेट है इट इज़ नियर अबाउट 10 to 12%, विच मीन्स ह्यूज। यानी कि जो अगले टाइम में, आने वाले टाइम में, दिस विल बी द मेन थ्रस्ट एरिया फॉर द टेक्सटाइल सेक्टर। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अब जोर इस पर काफ़ी ज़्यादा है। अभी इसका एज ऑन डेट इसका मार्केट है $29 बिलियन का, एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड टू ग्रो टू $309 बिलियन बाय 2047। ठीक है। अब इसके हैं गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स टू बूस्ट टेक्निकल टेक्सटाइल सेक्टर क्या है। नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन लगाया इन्होंने, जिसमें क्या है, ग्रांट ऑफ इंटर्नशिप सपोर्ट फॉर टेक्निकल टेक्सटाइल्स। जो लड़के ट्रेनिंग करते हैं, जो पढ़ते हैं, उनको वो कहते हैं कि दे आर सम पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग दे आर डिप्यूटेड टू द टेक्निकल टेक्सटाइल फैक्ट्रीज। सो दे हैव हैंड्स ऑन ट्रेनिंग वहाँ पर। यहाँ एकेडेमिया उनको पढ़ाते हैं। सो वंस दे ग्रेजुएट, दे कम आउट ऑफ द ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, दे हैव द वर्किंग स्किल्स। ये फैसिलिटी उन्होंने क्या दिया, इसको एक दे दिया ग्रांट ऑफ इंटर्नशिप सपोर्ट। दूसरा है ग्रेड स्कीम, ग्रांट फॉर रिसर्च एंड एंटरप्रेन्योरशिप अक्रॉस एस्पायरिंग इनोवेटर्स इन टेक्निकल टेक्सटाइल्स। अब चैलेंजेस क्या है इसमें टेक्निकल टेक्सटाइल में? टेक्निकल टेक्सटाइल में क्या है, इसमें जो भी मशीन लगती है ना, एज ऑन डेट वी हैव टू इम्पोर्ट इट। जैसे पहले हमने पढ़ा ना कि सारा इंडिया में ही होता है, लेकिन जो टेक्निकल टेक्सटाइल में है हमारे पास इसके लिए मशीनरी इंपोर्ट करनी पड़ती है। फाइन, ये उसमें लिमिटेड स्किल ट्रेनिंग इन टेक्निकल टेक्सटाइल, जिसे अभी कहा हमने प्रोग्राम बनाया अब उसके लिए टू कम्बैट दैट इश्यूज़। ये इसमें कुछ चैलेंजेस है इसमें टेक्निकल टेक्सटाइल। अब रहा ये काम, इसके 12 टाइप्स हैं इन टेक्निकल टेक्सटाइल्स। किसमें है? फॉर एग्जांपल इंडोटेक, जो इंडस्ट्रीज़ में लगते हैं ना, जैसे ब्रशेस लगते हैं, कंप्यूटर प्रिंटर रिबन लगते हैं, कंपोजिट रोप्स लगते हैं, दोज आर ऑल टेक्निकल टेक्सटाइल्स। मोबाइल टेक में मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर फॉर टेक्निकल टेक्सटाइल इज़ मोबाइल टेक, यानी कि आपके कार में, ट्रांसपोर्ट में आपके सीट्स बनते हैं, आपके जो बेल्ट्स बनते हैं, कैबिन फिल्टर्स बनते हैं, हेलमेट्स बनते हैं, ये सारे उनमें होता है
टेक्निकल टेक्सटाइल यूज़ होते हैं। स्पोर्टेक, स्पोर्ट्स में ये यूज़ होते हैं। बिल्डटेक, फ्लोर एंड वॉल कवरिंग्स में ये टेक लगता है। होम टेक, पिलोज, मैट्रेसेस, ब्लाइंड्स, मॉस्किटो नेट्स, कारपेट ब्लॉकिंग क्लॉथ, बैकिंग क्लॉथ, इनमें सब टेक्निकल टेक्स लगता है। मेडिटेक सबसे इम्पॉर्टेंट है, कंटैक्ट लेंसेज में ये होते हैं, बेबी डायपर्स में यूज़ होते हैं, सैनिटरी नैपकिन्स में होते हैं, सर्जिकल सुचर्स में होते हैं, सर्जिकल डिस्पोजेबल्स में होते हैं। सो टेक्निकल टेक्सटाइल बहुत डिमांडिंग अब बन रहा है। क्लॉथ टेक, इंटरलाइनिंग्स, लेबल्स, जो लेबल लगते हैं, इलास्टिक नैरो फैब्रिक्स, शू लेसेस, ऑल टेक्निकल टेक्सटाइल्स। एग्रोटेक, एग्रीकल्चर में लगते हैं, बर्ड प्रोटेक्शन नेट्स। प्रोटेक, बुलेट प्रूफ प्रोटेक्टिव क्लोथिंग, हाई विजिबिलिटी क्लोथिंग, फायर रिटार्डेंट, उनमें लगता है टेक्निकल टेक्सटाइल्स। पैकिंग में रैपिंग का फैब्रिक, सॉफ्ट लगेजेस, टी बैग्स, सब में टेक्निकल टेक्सटाइल लगता है। वेस्ट मैनेजमेंट में लगता है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन में, जियो कंपोजिट में, जियो बैग्स में, जियो ग्रिड्स में, इस सब में क्या लगता है। अभी एज ऑन डेट इंडिया इज़ द 5th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टेक्निकल टेक्सटाइल्स। हालांकि अभी वो पूरा ग्रो नहीं हुआ है टू द जो ना इसका चांसेस है। क्या बनाया इसके लिए गवर्नमेंट ने, नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन, जिसमें रिसर्च, इनोवेशन एंड डेवलपमेंट है, प्रमोशन एंड मार्केट डेवलपमेंट, एक्सपोर्ट प्रमोशन। ऐसे ही बाकी सिलिक सब यूनिट्स ऑफ टेक्सटाइल सेक्टर के हैं। सिलिक, जैसे मैं बताया, सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिलिक बोर्ड है। ऐसे जूट के लिए है, हैंडलूम के लिए ऐसे क्लस्टर बनाए गए हैं, वूल के लिए डिफरेंट पार्ट्स बनाए गए हैं। These are all I have to share you about textile sector in India. So in case you have any doubt or if you want some notes, please do not hesitate to call back or log into www.nancyfoundation.in. You can send me email, SMS, or I can send you handout also. If you like it, please subscribe it and share it. Thank you.